Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. So, in the last lecture, uh, we have discussed about Cauchy completeness principle. And also we have proved that every Cauchy sequence is bounded, every convergent sequence is Cauchy, and Cauchy completeness principle is nothing but every Cauchy sequence with real number is convergent. So this is Cauchy completeness principle. So to prove Cauchy completeness principle, we have used Bolzano-Weierstrass theorem. What does it tell us? Bolzano-Weierstrass theorem. Every bounded sequence has a convergent subsequence. It is nothing but Bolzano-Weierstrass theorem. Okay. So these are the things that we have discussed in the earlier lectures. Today, let me take first of all, today let me take one example. So let me share the screen. So example is this. Prove that the sequence xn defined by the following recurrence relation is convergent. Xn defined by the following recurrence relation is convergent. So recurrence relation is given xn plus 2 is equal to 1 by 2 xn plus 1 plus xn for n belongs to n, and also it is given that x1 is not equal to x2. So this is the definition of sequence xn. So now look at this term. Xn plus 2 term is nothing but xn plus 1 plus xn by 2. So this is the average of its previous two terms. Okay. So what is nth term of sequence? Nth term of sequence is nothing but average of its previous two terms. Now I want to show that this sequence is convergent. Okay, I don't know the limit, just I want to show that the sequence is convergent. So how can I show that the sequence is convergent? Since this is a sequence of real numbers, okay, so we shall prove that this is a Cauchy sequence, and in the last lecture we have proved that every Cauchy sequence of real number is convergent. So according to that result I can say that this is a convergent sequence. So our aim is to show that sequence xn defined by this recurrence relation is Cauchy. We have given that real sequence xn is defined by the following recurrence relation. So this is the definition. Xn plus 2 is equal to 1 by 2 xn plus 1 plus xn. So what is my claim? I want to show that xn is convergent sequence. Okay.
So we show that xn is a Cauchy sequence. Okay, so our purpose is to show that xn is Cauchy sequence. Now note that, now consider this term xn plus 2 minus xn plus 1. I want to show that xn is Cauchy, so I should estimate xn minus xm. Okay, so I want to estimate this term, and if this tends to 0 as mn tends to infinity, then I can say that xn is Cauchy. So I want to estimate this term. So before to estimate this term, first I will estimate this difference xn plus 2 minus xn plus 1. This is equal to modulus of xn plus 2 is given by this formula. It is nothing but 1 by 2 xn plus 1 plus xn minus xn plus 1. So this is nothing but this is 1 by 2 xn plus 1. It is getting cancelled with this one. So you will get xn by 2 minus, take 1 by 2 common. Now I can write down xn plus 1 first and then xn. So see, xn plus 2 minus xn plus 1 is equal to 1 by 2. 1 by 2 comes outside of this mode, and this mode now begin from xn plus 1 minus xn. So now further I can simplify this term according to this formula. So now suppose I want to estimate xn plus 1 minus xn, then just put n equal to n minus 1 in this formula. If you put n equal to n minus 1 in this formula, then you will get estimation of xn plus 1 minus xn. So again 1 by 2 comes outside of this mode. Here I should decrease 1. So xn minus 1. So continuing in this way, okay, one by 2, 1 by 2, 1 by 2. Again you can write here n minus 1, n minus 2, and so on. So at last, here look at this. This is nothing but 1 upon 2 raised to 3 x n minus 1 x n minus 2. तो ये के सफिक्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो लास्ट में क्या रहेगा यहाँ पे बाकी शेष x2 और यहाँ पे x1. तो यहाँ पे 2 की कितनी पावर होगी ये हम फाइंड आउट करते हैं. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे n माइनस 1, ये दोनों का सम करते हैं अगर आप, तो कितना आता है 3 और n माइनस 1 का. अभय हाँ सर. यहाँ पे ये सम कितना हो रहा है 3 और n माइनस 1 का. n plus 2. फाइन. यहाँ पे कितना हो रहा है, दिस इज नथिंग बट 1 by 2 रेज टू स्क्वायर xn माइनस, यहाँ पे कितना हो रहा है, सम कितना हो रहा है भाई. n plus 2. फाइन. यहाँ पे 2 raised to 1. n plus 3. So all the time summation of this suffix and this 2 power of 2 is constant, and that constant is nothing but n plus 2. So यहाँ पे लास्ट में क्या
हेलो, आवाज आ रही है हाँ मुझे? सर। हाँ सर। ओके, ये कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. सो xn plus 2 minus xn plus 1 is equal to 1 upon 2 raised to n x2 minus x1. Okay, now this is going to be positive since this is a modulus. Okay. Now consider nm belongs to n with n greater than m. Now let us estimate xn minus xm. Okay, now this is nothing but xn. I have assumed that n is bigger than m, so let me first write down xn. Okay, no problem. Xn minus, I can write in this way. Okay, xn minus 1, then I should add xn minus 1, then xn minus 2 plus xn minus 2 and so on to last x m plus 1 minus xn. So all these terms are cancelled and at last you will get xn minus xn. Now this is further less than or equal to xn minus xn minus 1, xn minus 1 minus xn minus 2 and so on. This is nothing but xm plus 1 minus xn. Now xn minus xn minus 1, this is less than 1 upon, see, if xn plus 2 minus xn plus 1, then I have 2 raised to n into x2 minus x1. Okay, so if here n plus 2, then here summation is n plus 2. Now I have xn, so here the summation should be n. So here x2, okay, this is nothing but x2 minus x1. So I should put here 2 raised to n minus 2 to get summation to be n. ओके, ये समझ में आ रहा है अभय? इसका समेशन कितना होगा? 2 गेट्स कैंसल, तो ये कितना हो जाएगा? n हो जाएगा. यहाँ पे n है इसलिए. हाँ ठीक सर. है, तो यहाँ पे मुझे क्या रखना चाहिए? n minus 3 x2 minus x1. यहाँ पे m plus 1 है, तो मुझे यहाँ पे रखना चाहिए m minus 1 और x2 minus x1. So from all this sum I can take x2 minus x1 or x1 minus x2 to be common, so that I will get 1 upon 2 raised to n minus 2, 2 raised to n minus 3 and so on, 2 raised to n minus 1. Okay, now this further can be less than in this way. This is further less than. Now I can take 2 raised to m minus 1 common from all this term. So m is smaller here, we assume that. Let me take 1 upon 2 raised to m minus 1 common, or you can write in this way. 1 upon 2 raised to m minus 1, so that you will get here 1, then 1 by 2, and the last, since I have taken 2 raised to m minus 1 common, here n minus 2 minus m plus 1 into x2 minus x1. So this is further less than. Now see, this is a finite number. Okay, so this is nothing but 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square
last term is nothing but 2 raised to n minus m minus 1 into x2 minus x1. Now this is further less than 2 raised to m. These are the finitely many terms. So if I put here some more term, so this term is bigger than to infinity x2 minus x1. Now look at this series. This is a geometric series, okay, with common ratio 1 by 2. So summation is given by a upon 1 minus r. The reason is this: a is equal to 1, r equal to, if you put 1 by 2 square upon 1 by 2, so that you will get 1 by 2. The sum is equal to a upon 1 minus r. So this is nothing but 1 upon 2 raised to m minus 2. This 1 by 2 goes into numerator. So 2 gets cancelled, 1 gets cancelled with this. So you will get 1 upon 2 raised to m minus 2 x2 minus x. Therefore, this is the final simplification. Okay. Therefore, we have begin with xn minus xn. Therefore, for n greater than m, modulus of xn minus xm is less than 1 by 2 raised to m minus 1 x2 minus x1. Let me say this to be a, and here x1 is not equal to x2. It is given in the hypothesis that these two are different terms. Now I want to show that xn is Cauchy, so I should begin with some epsilon greater than 0. For epsilon greater than 0, so therefore by Archimedean property, there exists n naught in n such that epsilon is greater than 1 by n naught. Okay. Now consider n m belongs to n with n greater than m, okay, and this modulus. Then also take n m greater than or equals to n0. Now let me consider this modulus, and this is always less than 1 upon 2 raised to m minus 1 into x2 minus x1. Okay. Here I want to make this less than epsilon, so I should use this convergence of this. Fine. Okay. So what should I do? Abhay, tell me, what should we do to get this less than epsilon for all n greater than or equals to n naught? I think I can directly apply the convergence of this series. See, what should I do? Let me use the fact that 1 upon 2 raised to since we know that limit of m tends to infinity 2 raised to m minus 1. What is limit of this sequence? This is 0. If m goes to infinity, 1 upon infinity tends to 0. Therefore, for this epsilon greater than 0, therefore for epsilon upon mod of x2 minus x1 greater than 0, since x1 and x2 are different,
if I take this epsilon, there exists n naught in n such that whenever your n is bigger than n naught, this implies that this can be made less than epsilon upon mod of x2 minus x1. Actually, I should write here mod, but since this is a positive term, no need to write modulus. Okay, so I have found n naught. Now let me put all this together for epsilon greater than 0. Now see, look at this by a. Now consider nm belongs to n with nm greater than or equals to n0 and n greater than m. Let me estimate xn minus xm. So xn minus xm is less than 1 upon 2 raised to m minus 1 mod of x2 minus x1. Now this is further less than, since your m is greater than or equals to n naught. Now consider this, look at this, m is, here I should write n. M is greater than or equals to n naught. So you can say that 1 upon 2 raised to m minus 1, it is less than epsilon by 2 raised to epsilon by x. This is less than epsilon by mod of x2 minus x1, and this is mod of x2 minus x1. So now this gets cancelled. The reason is this. Let me say this to be b by b, so that you have this there. Now let me put all this together. I begin with epsilon greater than 0. There exists n naught in n such that for all n m greater than or equals to n naught, n greater than m, this implies that xn minus xm, this can be made smaller than epsilon. See, therefore sequence xn is Cauchy sequence. समझ में आया भाई मैंने यहाँ पे ये क्यों किया? वैभव, हाँ सर, ये टेक्निक आपको पता है? हाँ सर, ये I have used very nice technique with the convergence of 2 raised to m minus 1. I have found n naught. See, look at this. यहाँ पे n naught मुझे कहाँ से मिला है? With the help of convergence of this sequence 1 upon 2 raised to minus m1 के लिए जो मुझे n naught मिलता है ना, वही मेरा n naught इस सीक्वेंस के लिए भी काम करेगा. ठीक है, बट मुझे एडजस्ट क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन इज टू बी एडजस्टेड. तो मैंने एप्सिलॉन क्या लिया यहाँ पे फॉर दिस सीक्वेंस? आई हैव टेकन दिस. ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि x1 एंड x2 आर डिफरेंट. इट इज गिवन इन द हाइपोथेसिस. सी, पता चला ये क्यों डिफरेंट दिए हुए. अदरवाइज ये 0 होता तो ये आप नहीं लिख सकते, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है, सो this is the application of Cauchy completeness principle. Cauchy completeness principle is also to be used to show the convergence of the sequence. Here I have shown that the sequence is Cauchy, and since it is a sequence of real number, I can say that it must be convergent. So this is the application of that principle, Cauchy completeness principle. Therefore, by Cauchy completeness principle, fine. So now today we will see new topic. The name of the topic is limit superior and limit inferior. This is a very important topic for examination purpose as well as for CSIR net also. Many times I have seen examples from limit inferior and limit superior in many competitive exams. Okay, so limit superior and limit inferior. Definition first of all. The name of the topic is
limit superior and limit inferior. Okay, so suppose I take a sequence xn, bounded sequence. Let xn be a bounded sequence. Sequence in R. Let xi n equal to supremum of xn, xn plus 1 and so on up to infinity. यहाँ पे जाइन क्या लिया है मैंने, सुप्रीमम ऑफ xn, xn plus 1 एंड सो. ये सुप्रीमम एग्जिस्ट क्यों करेगा, बाय द वे? सुप्रीमम ऑफ x k वेयर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n. देखिए ये सुप्रीमम इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस ली है, ठीक है. xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी अपर बाउंड भी होगी. Obviously it is non-empty subset of R. ठीक है. So and R has a completeness property. Order field R is complete order field. So its supremum exists. Supremum of xn exists. Okay, लेकिन मैंने तो यहाँ पे उनमें से थोड़े से टर्म निकाल दिए हैं और मैंने जाइन इज डिफाइनिंग दिस वे. सुप्रीमम ऑफ xn, xn plus 1, xn plus 2 n so on. तो xi1 क्या होगा, इफ यू पुट n इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या आएगा, x1, x2, x3 एंड सो ऑन. देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस xn itself xi1. xi2 is begin supremum of x2, x3 and so on. So I have defined in this way xi n. Okay, तो यहाँ पे देखिए clearly xi n belongs to R for every n belongs to n. The reason is this, xn is a sequence in n. Sorry, R. तो xi n तो R में होगी. दूसरी बात, अगर आप ये xi n है बराबर तो मैं xi n plus 1 क्या लिखता हूँ, xi n plus 1 मेरा क्या होना चाहिए वैभव? हाँ सर. xi n plus 1 क्या होना चाहिए? यू शुड रिप्लेस n by n plus 1 इन दिस फॉर्मूला. तो यहाँ पे पहला टर्म कौन सा आएगा, सुप्रीमम ऑफ xn plus 1. ये. ठीक है, तो ये समझ में आया. तो अब देखिए ये दो सेट है, xn है, xn plus 1 है. नोट दैट ये है और दूसरा सेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ xn, xn plus 1. यह इनमें से कौन सा सेट बड़ा होगा, ये दो सेट में से विच इज अ सबसेट ऑफ अदर सेट, अनदर सेट. बता सकते हैं ये बड़ा है कि ये? पहला वाला बड़ा है ना सर. ये वाला, you are saying that this subset of this, where is xn? Since xn is in this set, where is xn?
कौन सा बड़ा होगा? पहला वाला xn प्लस पहला वाला छोटा होगा ना, पता चल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? दिस इज अ सबसेट ऑफ, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पे है, पता चल रहा है आपको? सी लुक एट दिस xn प्लस 1, if you consider this element it must be here. Now check, it is not the first element but it is the second element of this set. Now consider xn plus 2, it is also there. Okay, so this is a subset of this. Okay, so what can you say about supremum? Which set has supremum larger, this or this? Less than or equal to, बड़े सेट की सुप्रीमम बड़ी होती है, पता चलता है? तो ये क्या है? सुप्रीमम ऑफ एक्स के वेर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1। ये क्या है? सुप्रीमम ऑफ एक्स के ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ n से स्टार्ट हो रहा है n प्लस 1, लेकिन ये क्या है? जाई ऑफ n प्लस 1, और ये क्या है? जाई ऑफ n। तो देखिए मैंने एक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस ली थी xn r में से, तो मैंने जाई n इस तरह से डिफाइन किया, सुप्रीमम ऑफ xn कोमा xn प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो न्यू सीक्वेंस मुझे मिली है जाई n, उसके लिए क्या होता है? जाई n प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू जाई n। तो मैं क्या कह सकता हूँ सीक्वेंस जाई n को? इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वेस्ट्रास कंप्लीटनेस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है? भाई हाँ सर। वेस्ट्रास कंप्लीटनेस प्रिंसिपल वो क्या कहता है? सर याद नहीं है। वैभव? सर याद नहीं है। श्रेयांश? श्रेयांश नहीं है? सर याद नहीं, याद नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। धैर्य? यस सर। हाँ, व्हाट इज वेस्ट्रास कंप्लीटनेस प्रिंसिपल? सर ये कितने Every- प्रिंसिपल आते हैं? Every monotonically decreasing bounded below sequence convergent. Yes, monotonically increasing and bounded below sequence is convergent. So Zion is monotonically decreasing. ठीक है, और बाउंडेड बिलो तो होगी, क्योंकि बाउंडेड बिलो होगी तो इसकी लिमिट होगी। ठीक है, जाइन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अगर जाइन बाउंडेड बिलो होगी तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या होगी? सपोज मैं मान लेता हूं कि जाइन बाउंडेड बिलो है, ठीक है, तो लिमिट ऑफ जाइन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू वेस्ट्रास कंप्लीटनेस प्रिंसिपल, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो इसकी कुछ लिमिट मिलेगी, तो इसकी लिमिट है वो क्या होगी? GLB ऑफ जायन और इन्फिमम ऑफ जायन। तो मैं यहाँ पे दो केस लेता हूँ, देन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जायन, ये क्या होगी? GLB ऑफ जायन कब होगी? GLB इफ जायन इज बाउंडेड बिलो, और मैं क्या डिफाइन करता हूं? माइनस इंफिनिटी डिफाइन करता हूं, इफ जायन इज अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, ये मैं क्यों लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू वेस्ट्रास कंप्लीटनेस प्रिंसिपल। तो ये मैंने जाइन डिफाइन की है ना, उसी को बोलते हैं लिमिट सुपीरियर।
ठीक है, अगर एग्जिस्ट करती है ये, तो लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस xn is denoted by ये सिंबल है, उसके ऊपर में ये बार कर देता हूं ना, एंड उसकी डेफिनेशन क्या है, ये है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Zion। ठीक है, ये अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे मैं, और ये क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Zion क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्स के। Zion की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्स के ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। देखिए यहाँ पे मैंने Zion किस हिसाब से डिफाइन की थी, सुप्रीमम ऑफ xk where k greater than equals to n. So I can write in place of Zion supremum of xk where k greater than equals to n। लेकिन लिमिट ऑफ Zion है क्या, GLB, और GLB मीन्स इन्फीमम ऑफ Zion। ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ Zion क्या है, सुप्रीमम ऑफ k greater than equals to n एक्स के। तो ये हुआ, therefore लिमिट सुपीरियर एक्स एन इज इक्वल टू इन्फीमम और एन सुप्रीमम के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एक्स के। देखो पूरा करके ये आया, लिमिट इन्फीरियर इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम। ठीक है, इन्फीमम और एन, सुप्रीमम और के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एक्स के, इसे बोलते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस एक्सन। मैं आपको टेक्निक बताता हूं जो याद रखने के लिए है। लिमिट सुपीरियर डिफाइन करना है ना, तो आपको इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम लेना है। सुपीरियर के लिए इन्फीमम से स्टार्ट करना है, तो इन्फीरियर के लिए कहां से स्टार्ट करना होगा, यहाँ पे सुपीरियर से। यस सॉरी, कहां से स्टार्ट करना होगा, तो आपको सुपीरियर सुप्रीमम से। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। सिमिलरली अगर आपको लिमिट इन्फीरियर डिफाइन करनी है, तो ये देखिए मैं क्या लेता हूं, लेट अस कंसीडर थीटा एन। थीटा एन में क्या लेता हूं, इन्फीमम से स्टार्ट करता हूं, इन्फीमम ऑफ एक्स के फिर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। तो ये इन्फीमम किस सेट का होगा, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि थीटा एन प्लस वन क्या होगा। आई शुड रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन। इन्फीमम ऑफ एक्स के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन प्लस वन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस टू, ये होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, ये दो सेट में कंसिडर करता हूं, तो ये सेट है वो बड़ा होगा। A इज अ सबसेट ऑफ B, तो इन्फीमम मैं लेता हूं अगर, ठीक है,
अगर ये देखो, ये मैं लेता हूँ 1 2 3, बी लेता हूँ 0 1 2 3, तो उसकी इन्फीमम क्या, ये इज अ सबसेट ऑफ बी, आपको पता चल रहा है, ठीक है। इन्फीमम ऑफ ये क्या होगी, एल जी एल बी 1 होगी। इन्फीमम ऑफ बी कौन सी होगी, 0 होगी। तो एन में से कौन सी बड़ी है, तो देखिए ये सबसेट ऑफ बी है, तो इन्फीमम के लिए वो ऑर्डर चेंज हो जाता है। आपको पता चल रहा है मैं जो समझाने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब जो सेट बड़ा हाँ है, सर। जो सेट बड़ा है उसकी इन्फीमम छोटी हो जाएगी, और जो सेट छोटा है उसकी इन्फीमम बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इन्फीमम लेता हूँ तो कौन सी ये वाले की इन्फीमम है वो छोटी हो जाएगी। सबसेट ऑफ infimum of xn plus 1. The reason is this: A is subset of B implies infimum of B less than or equal to infimum of A. Due to this reason ये लिख सकता हूँ। लेकिन ये देखिए क्या है, infimum of xk where k greater than or equals to n, this is less than or equal to infimum of xk where k greater than or equals to n plus 1। तो ये तो मैंने क्या डिफाइन किया था, थीटा एन, theta n less than or equal to theta n plus 1 for every n belongs to n. Therefore, theta n is monotonically increasing sequence. ठीक है। अगर वेस्ट्रास कंप्लीटनेस प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या कहता है कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबो सीक्वेंस इज कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो मैंने प्रूव कर दिया, अगर ये बाउंडेड एबो है थीटा है तो हम इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी थीटा n, ये मैं निकालता हूँ। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की लिमिट क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ थीटा n। कब, अगर थीटा n इज बाउंडेड फ्रॉम बो। ठीक है, और ये नहीं है तो मैं डिफाइन करता हूँ इसके लिए इंफिनिटी। तो लिमिट इंफीरियर is denoted by ये सिंबल है उसका xn। of sequence xn is denoted by this। ये limit inferior of ठीक है, limit inferior is defined as तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, लिमिट ऑफ थीटा एन एज एन टेंस टू इंफिनिटी। थीटा एन क्या है, लिमिट
n टेंस टू इंफिनिटी, ये है इन्फीमम ऑफ थीटा एन। किस हिसाब से मैंने डिफाइन किया था, देखिए, इन्फीमम ऑफ एक्स के वेर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। तो ये होगा ठीक है। और लिमिट ऑफ थीटा एन क्या होगी, वो सुपीरियर ऑफ थीटा एन, एंड सुपीरियर इज theta n is infimum of x k greater than equals to n. तो in short, limit inferior is given by inferior है तो supremum over n infimum x k greater than equals to n। ठीक है, ये आ गया। और लिमिट सुपीरियर क्या होगी सीक्वेंस एक्शन की, सुपीरियर है तो कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, इन्फीमम से, सुप्रीमम ऑफ एक्स के। तो ये थी लिमिट इंफीरियर और ये थी लिमिट सुपीरियर। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लेके थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मुझे ये यहाँ पे एक्शन मुझे दी हुई है, कौन सी सीक्वेंस है, 1 अपॉन, यानी मुझे इसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए लिमिट सुपीरियर क्या होगी, एक्शन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, जायन। ये जायन क्या है, इन्फीमम ऑफ के सुप्रीमम, जायन इज नथिंग बट सुप्रीमम ऑफ एक्स के वेर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। जायन सुप्रीमम है ना। देखिए, जायन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हुआ। नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सुप्रीमम, यहाँ x सुप्रीमम ऑफ, पहला अगर आप k की जगह पर n लिखते हैं, xn प्लस 1 xn प्लस 2 एंड सो ऑन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, xn की वैल्यू क्या है, अब भाई 1/n, ये क्या होगी 1 अपॉन n plus 1 n plus 2। तो ये सेट की सुप्रीमम क्या होगी, ये होगी 1 अपॉन n इज द लार्जेस्ट वन फ्रॉम अमंग ऑल दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हाँ सर। ये सुप्रीमम इसकी 1 अपॉन n होगी, और n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्या है, 0। तो ये लिमिट सुपीरियर क्या आई फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, 0। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं लिमिट इंफीरियर। ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, थीटा है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये क्या होगा, थीटा n इज नथिंग बट इनफीमम ऑफ एक्स के ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, तो
देखिए ये इन्फिमम किस सेट की होगी, xn प्लस 1 एंड सो ऑन। xn क्या है, इसकी इन्फिमम क्या होगी इस सेट की, बताइए। हमने प्रूव किया है GLB ऑफ 1 अपॉन n वेर n बिलोंग्स टू n क्या है, बोलिए अभय, ये हमने प्रूव किया है GLB ऑफ 1 अपॉन n वेर n बिलोंग्स टू n, ये ऐसा ही कुछ है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसकी, 0 इन्फिमम ऑफ दिस सेट इज 0। तो ये क्या हुआ, 0। यहाँ पे एक चीज देखिए आप, सीक्वेंस है ना वो कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस हमारी कैसी है, कन्वर्जेंट है, इसलिए उसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों सेम मिली, और इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1 अपॉन n हैज लिमिट 0। ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। -1 raised to n upon n, ठीक है। तो पहले हम लिमिट सुपीरियर निकालते हैं इसकी, ये क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, n से स्टार्ट होगा, -1 रेज टू n अपॉन n, -1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, -1 रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे दो चीज मिलेगी मुझे, सुप्रीमम है वो क्या मिलेगी, अगर n इवन नंबर है, सोचिए भाई n इवन है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी 1 by n। 1 बाय n। ठीक है, तो 1 बाय n इज द सुप्रीमम अमंग ऑल, क्योंकि ये सबसे बड़ा होगा, पता चल रहा है। हाँ सर। इफ n इज इवन, अगर n ऑड है तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगी। ठीक है, n ऑड है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगी, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये सबसे बड़ा होगा, इफ n इज ऑड। तो दोनों ही केस में यहाँ पे 1 बाय n है और यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट क्या आती है, 0। 0। तो यहाँ पे लिमिट सुपीरियर क्या होगी, ठीक है। अब ठीक हम है। निकालते हैं लिमिट इंफीरियर, ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या होगा बताइए, इन्फिमम लेना चाहिए सुप्रीमम, आई शुड टेक इन्फिमम ऑफ विच सेट, -1 रेज टू n अपॉन n, -1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, -1 रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या मिलेगा मुझे, इन्फिमम यहाँ पे
n इवन है, ठीक है, तो क्या मिलेगा मिलेगा इवन है तो ये टर्म देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, और इवन है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, -1/n+1। तो ये वाला है माइनस, अगर ये प्लस होता, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्फिमम क्या मिलेगी, इफ n इज इवन देन दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। अगर n ऑड है तो कौन सा वाला सबसे छोटा होगा, ये होगा -1/n। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये क्यों हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना, मैं जो समझाने जा रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। तो ये इसकी लिमिट क्या होगी, n goes to infinity, you can take minus sign outside of this limit, in both the case limit is 0, so in this case ठीक है, बाद में मैं लेता हूं xn इक्वल टू n, first let us evaluate limit superior, infimum of n, n+1, n+2 and so on, ठीक है, superior, sorry I should write here not infimum but supremum of this limit n tends to infinity, इसकी सुप्रीमम क्या होगी, इंफिनिटी, और n टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी, ठीक है। therefore limit superior of xn is infinity। अब हम निकालते हैं लिमिट इंफीरियर, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे होगा इनफिमम ऑफ इसका इनफिमम क्या होगा n, और n टेंस टू इंफिनिटी, ये लिमिट क्या हो जाएगी इंफिनिटी। तो ये देखिए लिमिट इंफीरियर क्या मुझे मिला, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है एंड डाइवर्स टू इंफिनिटी है, लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर दोनों मुझे, उसके बाद ये कंसीडर करता हूँ। xn is equal to -1/n into n. Now let me find out first limit superior. It is nothing but limit n tends to infinity, supremum of -1/n into n, -1/n plus 1 into n plus 1 एंड सो ऑन। तो ये मुझे बताइए उसका सुप्रीमम क्या मिलेगा मुझे, n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, अगर n इवन में इवन से स्टार्ट करता हूँ, और बाय द वे ये प्लस माइनस हो गया, तो कहाँ तक जाएगा ये,
ये सुप्रीमम क्या हो जाएगी इसकी, इन्फिनिटी। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम हो जाएगी इन्फिनिटी, सो दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट सुपीरियर मुझे मिली xn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी मैं फाइंड करता हूँ लिमिट इंफीरियर। देखते हैं क्या होता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखिए -1n इंटू n तो ये देखिए आई शुड राइट हियर इन्फीमम फर्स्ट ऑफ ऑल। लिमिट इंफीरियर है तो मुझे इन्फीमम, आई फॉरगेट, इन्फीमम ऑफ सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी इन्फीमम क्या होगी, ये माइनस इन्फिनिटी, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, n ऑड है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, तो लिमिट इंफीरियर उसका हो जाएगा ठीक है। बाद में ये वाला एग्जांपल है, xn is given by 1 plus minus 1 raised to n. So limit superior of xn is limit n tends to infinity supremum of 1 plus minus 1 raised to n, 1 plus minus 1 raised to n plus 1 and so on। तो ये सेट है, उसकी सुप्रीमम क्या होगी, अभय बता सकते हैं आप मुझे? इनफाइनाइट। यहाँ पे -1 रेज टू n प्लस n के लिए दो ही चॉइस है, इधर इट इज इवन नंबर और इट इज ऑड नंबर। अगर n इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो -1 रेज टू n क्या हो जाएगा, n इवन है तो 1 हो जाएगा। 1। ठीक है, ऑड है तो एक्चुअली ये देखिए, तो आपको ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देयर आर ओनली टू चॉइस फॉर दिस एक्सप्रेशन, इधर इट इज -0 और 1। अगर n ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज यू विल गेट 0। Otherwise it is, if n is even, then 1 plus 1 that is 2. Sorry, I should write here 2, not 1. So there are only two choice, either it is 0 or it is 2. So what is supremum? Tell me now, Abhay. 2. Yes. So limit superior is 2. Okay, now let me find out limit inferior. ये क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे इंफीरियर है सो इनफीमम, वन प्लस माइनस 1 रेज टू n।
तो ये देखिए, बता सकते हैं आप व्हाट इज इन्फीमम ऑफ दिस सेट? 0. यस, वेरी गुड। सी, so limit inferior is ठीक है। उसके बाद वाला एग्जांपल देखते हैं। छठा, xn में क्या लेता हूँ, -1n इंटू 1 + 1/n। So let us find out limit superior. Limit n tends to infinity, supremum of first term is -1n, 1 + 1/n, -1n + 1, 1/n + 1, and so on. Limit n tends to infinity. Now what is the supremum of this set? Suppose let us first assume that n is even number. अगर n even है तो -1n + 1 हो जाएगा। So this will be the largest element. क्या होगा? 1 + 1/n। N. Yes. कब? If n is even. अगर n odd है तो ये नेगेटिव होगा, तो n + 1 इवन होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम ये सुप्रीमम ये हो जाएगा। हाँ सर। If n is odd, इन दोनों केस में लिमिट क्या होगी? 1/n goes to 0, 1/n + 1 also tends to 0, so 1 + 0, that is 1. So limit superior of xn is 1. अब हम लिमिट इंफीरियर ऑफ xn limit n tends to infinity, infimum of this set -1n, 1 + 1/n, -1n + 1, तो ये सेट है, ठीक है। इसकी इन्फीमम क्या होगी? दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n मान लीजिए ऑड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा? इसका इन्फीमम हो जाएगा। दिस इज द लार्जेस्ट वन इफ विथ पॉजिटिव, तो ये इफ n इज ऑड। और इवन है तो क्या मिलेगा? इवन है तो ये तो प्लस आ जाएगा, लेकिन ये दिस बिकम्स माइनस, सो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन। तो 1/n goes to 0, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस लिमिट इंफीरियर की वैल्यू क्या मुझे मिली? सर इसमें माइनस इनफाइनाइट नहीं आएगा? माइनस इनफाइनाइट कैसे आ सकता है? 1 + 1/n है। 1/n टेंस टू 0 एज n गोज टू इंफिनिटी। ये देखिए, नहीं सर, मैं क्या कह रहा ये हूँ ये कि ये 1। इन्फीमम ये वाला ना। हाँ सर। देखिए, अगर n इवन है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा?
1 + 1/n, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन n इवन है तो n + 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, बाद में n + 2, n इवन है तो इवन हो जाएगा, तो ये प्लस साइन में आएगा। ऐसे सारे टर्म आते रहेंगे, लेकिन ये देखिए इनमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है, -1 + 1 + 1/n+1 इफ n इज इवन। समझ में आ रहा है? 1/n+3 वाला छोटा नहीं होगा इसके बाद वाला उससे? नहीं, 1 लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, वो भी ये नेगेटिव होगा ना? ये देखिए n+1 और यहाँ पे मैं 1n+3 सपोज मैं लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? बड़ा n+1 वाला। ये n+1 वाला बड़ा होगा ना, तो मैं हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी। समझ में आ रहा है? एक मिनट सर, n बराबर 1 ले लो। ये माइनस से मैं मल्टीप्लाई, तो छोटा कौन सा हुआ? हाँ सर, हो गया। क्लियर? हाँ, सिमिलर आर्ग्यूमेंट इज एप्लीकेबल फॉर दिस ऑल्सो। ओके ओके। तो ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ठीक, तो ये लिमिट इंफीरियर मुझे क्या मिली, -1। ठीक है, तो देखिए बाद में कुछ एग्जांपल्स है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आप ट्राई करना। ठीक है, xn is equal to -1n into n plus n square plus बाद में मैं ये रखता हूँ 1 + -1n। ठीक है, 9th बना। तो इन सारे एग्जांपल्स के लिए आपको लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड करनी है। तो ये है लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर। दिस इज द डेफिनेशन and these are the examples. In the next lecture we will discuss some properties of limit superior and limit inferior. We stop our discussion. Let me download the attendance. So goodbye. गुड बाय सर।